So, dear student, today in this lecture we will discuss about the prion. In this lecture we will cover the definition of prion, discovery of prion, how prion are transmitted, what type of diseases are caused by prion, pathogenesis of the diseases of prion, the treatment of the prion, and we also discuss the prevention of the prion. So let us start about that. What are prion? Prion are protein containing particles. What are prion? Prion are protein containing particles. Actually, prion are misfolded protein with the ability to transmit their misfolded shape into normal variant of the same protein. You should note that prion are only protein. They are infectious protein particles with no detectable nucleic acid DNA. What are the differences between prion and viruses? Viruses contain nucleic acid, either DNA or RNA, but prion do not contain any type of nucleic acid. They are just infectious protein. Important points should be noted that they are highly resistant to inactivation by heat, formaldehyde, ultraviolet light at the doses that will inactivate the viruses. It means that viruses, when you give viruses a special doses of heat, chemicals or ultraviolet light, they are killed. But prion are resistant to the heat that kill the viruses. Note that prion are resistant to the temperatures usually employed in cooking. Is a fact that may be important in their suspected ability to transmit it by heat. It means that prion are resistant to heating while you are cooking. So prion are transmitted by heat by food. Why? Because the food containing prion, and when you heat the prion are resistant to the heat. Prion are how. Now the question arises that how we can inactivate the prion. Prion inactivated by protein and lipid disturbing agents such as phenol, ethers, sodium hydroxide, and hypochlorite. You can kill the prion by these lipid disturbing and protein disturbing agents. Now, what is the discovery of prion? How prion were discovered? Actually, prion were first of all discovered by Stanley Prusner in 1990, and due to this discovery, he was awarded Nobel Prize in 1999, 1997. He said prion are pathogenic and involved in the rare degenerative disease of central nervous system known as spongiform encephalitis and also cause famous mad cow disease. The disease, first reported in Great Britain, developed a very serious aggression, agitation, and scare in the cattle. प्रियान सबसे पहले स्टैनले प्रेसर ने 1990 में डिस्कवर किया। इस वजह से इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया 1997 में। इसने कहा कि प्रियान पैथोजेनिक होते हैं, ये बीमारी काज करते हैं और ज़्यादातर ये डीजेनरेटिव डिजीज़ काज करते हैं, मतलब वक्त के साथ साथ आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बीमारी आती है, और उसने बीमारी का नाम दिया स्पंजिफॉर्म इंसेफेलाइटिस। हम डिस्कस करेंगे कि इस बीमारी को स्पंजिफॉर्म इंसेफेलाइटिस क्यों कहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि ये मैड काउ डिजीज़ भी काज करता है। ये मैड काउ डिजीज़ सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में ये डेवलप हुआ केटल में, और वो केटल जब इफेक्ट हुई थी तो एग्रेशन शो कर रही थी, एजिटेशन और स्केयर। स्केयर मतलब ये है कि मतलब खारिश की तरह ये किसी सब ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को क्या करते थे, रगड़ लेते थे। इसके अलावा ह्यूमन ब्रेन के जो केसेस है, मतलब वो भी मतलब डिस्कवर हुए कि ह्यूमन में ये बीमारी काज करते हैं जब ह्यूमन जो है वो बीप खाती थी केटल की,
और इस केटल को मैड काउ डिजीज़ था तो इससे ट्रांसमिट होती थी। इसके अलावा 2005 में तकरीबन 100 केसेस अब ह्यूमन रिपोर्टेड हुए और बीमारी का नाम क्या रखा था, क्रेस्पिल जेकॉब डिजीज़। अभी हम कहते हैं कि असल में ये प्रियन क्या है, प्रियन कहाँ से ही मतलब आ जाते हैं। द प्रियन प्रोटीन इज कोडेड बाय नॉर्मल सेलुलर जीन and is thought to function as a single signal transduction pathway in neuron। प्रियन नॉर्मल में असल में एक सेलुलर जीन जो है ये कोड करते हैं। ये प्रोटीन कौन कोड करता है, बॉडी में नॉर्मल सेलुलर जीन होता है और नॉर्मल इस जीन का काम ये होता है कि ये न्यूरॉन के दरमियान जो है मतलब सिग्नल के तौर पे काम करते हैं। इस जीन इसका नाम क्या होता है, द नॉर्मल प्रियन प्रोटीन इज नोन एज PRPC और प्रियन प्रोटीन सेलुलर। PRPC का मतलब क्या है, प्रियन प्रोटीन सेलुलर। नॉर्मल को हम क्या कहते हैं, प्रियन प्रोटीन सेलुलर। और ये प्रियन प्रोटीन सेलुलर जो है ये किस में होते हैं, ये असल में इसका कन्फर्मेशन अगर आप देखें तो ये अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन होते हैं। ये क्या है, अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन प्रियन प्रोटीन सेलुलर। क्या होता है, इससे जो है प्रियन एबनॉर्मल प्रियन कब बनते हैं, व्हेन द अल्फा हेलिकल कन्फर्मेशन चेंज टू बीटा प्लेटेड शीट्स। जब ये अल्फा हेलिक्स जो है ये अल्फा हेलिक्स कन्वर्ट होते हैं किस में, बीटा में, इस बीटा में कन्वर्ट होता है। तो इसका फिर नाम चेंज, प्रियन प्रोटीन सेलुलर का नाम चेंज होता है। इसको हम कहते हैं प्रियन प्रोटीन स्केरपी, प्रियन प्रोटीन स्क्रेपी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं PRPSC। दी नॉर्मल प्रोटीन फिर क्या होता है, दे एग्रीगेट इनटू फिलामेंट। तो ये जब बीटा फॉर्म में, ये बीटा हेलिक्स में ये कन्वर्ट होता है, ये बीटा हेलिक्स है, बीटा शीट्स। तो फिर असल में ये मतलब जमा हो जाते हैं एक फिलामेंट के फॉर्म में। और इसका फिर मतलब नुकसान क्या होते हैं, डिसरप्ट न्यूरॉन फंक्शन एंड काज सेल डेथ। तो ये न्यूरॉन फंक्शन को डिसरप्ट करता है और सेल को क्या करते हैं, डेथ। अभी स्पेसिफिक सेलुलर RNA है वो ये कन्फर्मेशन चेंज लेके आता है। आपने याद रखना है इस सेलुलर RNA जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी ये जो है हम सिंपल ये कहते हैं कि पैथोजेनिक प्रोटीन कैन बी थॉट ऑफ कंसेप्चुअली इज अ मिसफोल्डेड प्रोटीन। तो ये पैथोजेनिक प्रोटीन जो है ये क्या है कि असल में ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है। These misfolded protein not only cause Creutzfeldt-Jakob disease in human and mad cow disease in cattle, but are suspected of being involved in the pathogenesis of important disease such as Alzheimer's disease and Parkinson disease। ये मतलब ये जो एबनॉर्मल प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है, ये CZA के अलावा मैड काउ डिजीज़ के अलावा ये ह्यूमन ब्रेन की मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ भी काज कर सकते हैं। अभी इन ह्यूमन द स्लो एजेंट काज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ characterized by in long incubation period, gradual onsets and a progressive invariably fatal course। ये जो ह्यूमन में स्लो एजेंट ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ काज करते हैं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल मतलब अनसेट आ जाता है और फिर जो है ये फेटल हो जाता है। इसके लिए एंटी माइक्रोबियल थेरापी मतलब नहीं है, कोई मेडिसिन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। Note that the term flu refer to the disease, not to the rate of replication of those viruses that cause the flu disease। इसका मतलब ये है कि ये फ्लू जो है ये असल में इसका मतलब ये है, ये डिजीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि रिप्लिकेशन इसका जो क्या है फ्लू वायरल डिजीज़ के साथ जो है वो इसकी तरह सेम है। ह्यूमन प्रियन मीडिएटेड डिजीज़ जो है इसकी दो एग्जांपल है, एक का नाम है कोरू और दूसरी का नाम है CJD जो क्रेस्टफील्ड-जेकॉब डिजीज़। इसको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड ट्रांसमिसिबल स्पंजीफॉर्म। ये CJD और कोरू डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिसिबल स्पंजीफॉर्म इंसेफेलाइटिस। The term spongiform refer to the spongy Swiss-cheese-like holes seen in the brain parenchyma that are caused by the death of the neuron। इसको हम मतलब
स्पंजीपाम इसलिए कहते हैं कि ब्रेन में इस तरह की स्विच लाइक होल बनाते हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह की होल्स बनाते हैं, इस तरह की ब्रेन में होल बनाते हैं, जिस तरह की जो चीज़ होते है इस तरह चीज़ में होल, इस तरह ब्रेन में होल बनाते हैं और ये न्यूरॉन का डिस्कस करते हैं। इस वजह इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्पंजीबॉम। अभी इंसेफेलोपैथी किसे कहते हैं, इंसेफेलोपैथी पैथोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं इन द ब्रेन में विदाउट साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन, लेकिन इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। और जो इंसिपेलेटर जो होता है इसमें क्या होता है, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है और इंसिपेलोपैथी में इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। अभी जो ट्रांसमिसिबल स्पंजीपाम इंसिपेलेटस है इसमें ब्रेन में इन्फ्लेमेशन नहीं आता है, ये आपने याद रखना है। Transmissibility of the agent of Kuru and CJD was initially established by inoculation of material from the brain of infected patient into the brain of primates, followed by serial transfer to the brain of other primates। मतलब ये है कि इसका ट्रांसमिशन ये हुआ था कि हम इन्फेक्टेड ब्रेन से दूसरे बंदे को मतलब सैंपल ट्रांसफ़र कर रही थी, तो इस वजह से ये ट्रांसफ़र होता था। Note that Kuru and CJD and Bovian spongiform encephalopathy mad cow disease are required by injection। ये बीमारी जो है इसका ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो कुरु और ये CJD जो है ये मतलब इंजेक्शन की वजह से होते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस रूट द प्रियन प्रोटीन मस्ट सर्वाइव डाइजेशन इन द इंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड देन पेनिट्रेट द गट म्यूकोसा, कि जब आप खुराक में ये चीज़ें खाते हैं तो ये डाइजेशन में बच जाते हैं और ये गट म्यूकोसा तक पहुंच जाता है। फिर क्या होता है, देन एम्प्लीफाइड विद द फोलिकल डेंड्रिटिक सेल इन द लिम्फेटिक टिश्यू सच इज पायर पेचेस, और फिर ये प्रोटीन जाते हैं लिम्फेटिक डेंड्रिटिक सेल उसको ले जाते हैं लिम्फेटिक टिश्यू में मतलब पैर पेचेस में, और फिर क्या होता है प्रियान मूव टू द स्प्लीन, फिर स्प्लीन में जाते हैं, ठीक है। और मतलब ये कौन लेके जाते हैं, ये डेंड्रिटिक सेल। स्प्लीन में फिर ये कहाँ से जाता है, कहाँ पे जाता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है और किसके ज़रिए जाता है, सिंपैथेटिक नर्व्स के ज़रिए जाता है। इसके अलावा ये इसका ट्रांसमिशन है कि ये मतलब सेंट्रल नर्व सिस्टम में खुराक के ज़रिए खुराक में अब जब ये मौजूद होता है तो ये असल में मतलब स्टमक से फिर स्प्लीन में और स्प्लीन से फिर जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है सिंपैथेटिक नर्व्स के ज़रिए। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि प्रियान रीच द ब्रेन विद लिम्फोसाइट के ज़रिए ब्रेन तक पहुंच जाता है। अच्छा, ब्लड के ज़रिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए नहीं जा सकता क्योंकि इसका कोई केस नहीं है। इसके अलावा CJD जो है ये ट्रांसमिटेड होता है एट्राजिनिकली। एट्राजिनिकली का मतलब ये है कि जब आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, कार्ना के ट्रांसप्लांटेशन करता है, डियोरामेटर के ग्राफ्ट करते हैं, इम्प्लेंटेड ब्रेन इलेक्ट्रो, या जब आप क्या करते हैं कि ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट किसी बीमारी को मालूम करने के लिए जब इलेक्ट्रोलाइट करते हैं मतलब रख देते हैं। इसके अलावा एंड ग्रोथ हार्मोन एक्सट्रैक्टेड मेड फ्रॉम ह्यूमन पिट्यूटरी ग्लैंड, या ग्रोथ हार्मोन आप मतलब देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जब ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देयर इज एविडेंस दैट क्विनाक्रीन एंड इक्रिडीन एनालॉग इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ पैथोलॉजिक प्रोटॉन प्रियन फॉर्म इन द सेल कल्चर। मतलब ये है कि जो मतलब क्या होता है एबनॉर्मल मतलब प्रियन प्रोटीन होते हैं, इनके फॉर्मेशन को अब इनहिबिट करने के लिए क्विनाक्रीन या एक्रिडीन एनालॉग देते हैं, तो इस वजह से मतलब जो है एबनॉर्मल प्रियन प्रोटीन जिसको हम स्क्रैपी प्रोटीन कहते हैं वो नहीं बनेगी। दिस ड्रग आर करंटली बीइंग टेस्टेड इन द एनिमल मॉडल फॉर देयर एबिलिटी टू ट्रीट और प्रिवेंट प्रियन डिजीज़। ये प्रियन डिजीज़ के लिए हम इस पर रिसर्च करते हैं। प्रियन डिजीज़ काजेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। प्रियन डिजीज़ जो है इनको हम 3 कैटेगरीज में कहते हैं। सम आर ट्रांसमिसिबल मतलब इन्फेक्शस होते हैं, एक बंदे से दूसरे में ट्रांसमिट होते हैं, इस फॉर एग्जांपल कोरू। सम आर हेरिडिटी मतलब पेरेंट्स से अपने में ट्रांसमिट होता है, इसका एग्जांपल है फेटल फीमेलियल इंसोम्निया बीमारी। अदर आर स्पोरेडिक, बट बहुत कम होते हैं मतलब
इन्फेक्शस होते हैं या हेरिडिटी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, जिस तरह की CJD बीमारी है। अच्छा, और ये स्पोरेडिक डिजीज़ जो है ये ज़्यादातर सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है। अभी देयर आर 5 ह्यूमन डिजीज़ काज बाई प्रियन। 5 डिजीज़ है। एक का नाम क्या है? खुरू, क्रेट्सफील्ड जेकॉब डिजीज़, विरजन क्रेप्सफील्ड जेकॉब डिजीज़, जर्स्टमैन स्ट्रासलर शिंकर सिंड्रोम और फेटल इंसोम्निया, ये 4 बीमारी है। खुरू जो है ये पैथोजेनेसिस, ये ट्रांसमिसिबल है, मतलब ये इन्फेक्शन है, एक बंदे से दूसरे बंदे में जाता है। और ये इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि इट इज़ काज बाय इंजेस्टिंग और हैंडरिंग ब्रेन टिश्यू। ये ब्रेन टिश्यू जो है मतलब आप इंजेस्ट करते हैं या हैंडल करते हैं, आकर इन न्यूजीनिया ट्राइब्स पीपल, ये मतलब कहाँ पे हुआ है? ये न्यूजीनिया पीपल में हो जाते हैं। तो ये जब आप इस तरह चीज़ का मतलब खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं ब्रेन का टिश्यू, तो इसमें मतलब प्रियान होते हैं और वो आपको ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्रासफील्ड जेकॉब डिजीज़ ये भी ट्रांसमिसिबल और इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा ये एट्राजेनिक ट्रांसमिशन भी इसका होता है, मतलब ट्रांसप्लांटेशन के ज़रिए ये ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा हेरिडिटी और जेनेटिक की वजह से भी होता है, जब जर्म सेल में म्यूटेशन आता है। और स्पोरेडिक जो है मतलब कम और कम, नो रिलेशन टू एनी काज, मतलब इसका काज मालूम नहीं होता है, क्योंकि सोमेटिक सेल में ज़्यादातर म्यूटेशन होते हैं। वेरिएंट क्राउड्सफील्ड जेकॉब डिजीज़ जो है ये भी इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस है, मतलब ट्रांसमिसिबल है। ये हम एक्वायर करते ईटिंग मीट, ठीक है, नर्वस टिश्यू फ्रॉम एनिमल विद मेड काउ डिजीज़। जब किसी एनिमल को मेड काउ डिजीज़ हो, आप उसको खाते हैं तो ये आपको हो जाता है। ग्रेट्समैन स्ट्रासलर शेंकर सिंड्रोम जो है ये असल में हेरिडिटरी बीमारी है, मतलब है माँ बाप से ये ट्रांसफ़र होता है। और मतलब इनका इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है कि जर्म सेल में म्यूटेशन होता है, तो इस वजह से ही पर ट्रांसफ़र होता है। फिटल फेमिलियन इंसोमिया जो है ये भी हेरिडिटरी बीमारी है, और ये भी म्यूटेशन होते हैं जर्म सेल में। ये बीमारी जो है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।